Okay, hello everyone. Good morning to all my dear students of class 11 science. So welcome once again in our chemistry live streaming class. Okay, so join fast everybody. Link already I have sent in your WhatsApp group. Okay, now. So today what we have to discuss in this particular chapter in the thermodynamics. You remember that yesterday what the topic we discussed? Yesterday we discussed about the processes, thermodynamic processes we discussed there. So anybody can text me. Yesterday we discussed how many type of the processes. Anybody can text. Yesterday we discussed total how many processes in which the thermodynamical process will be there. Anybody can text me. How many total number of the process we discussed yesterday? Okay, very good, Sabash. So Siman, then Mayur, Anam and Tanvi, Bhushan, then Prakhar, Vineet. So they all are writing the 7 type exactly. We discussed the 7 type of the processes. And what are those processes? Those are isothermal, then adiabatic, isochoric, isobaric, then cyclic, reversible and irreversible process. Okay, so these 7 type of the process yesterday we discussed. Now after that what we are going to discuss that अब क्या पढ़ना है अपने को. Now we have to discuss thermodynamic quantities. Now this part we have to discuss now. Thermodynamic quantities are there. Okay, not all some of the thermodynamic quantities we will discuss now. Basically आप ये भी कह सकते हो कि अपने को क्या पढ़ना है कि now we have to discuss about the state function. मतलब अगर आप कोई प्रोसेस करते हो तो वो प्रोसेस किस स्टेट फंक्शन से होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी. सो दीस टाइप ऑफ द thermodynamic quantity now we will discuss. Okay, so now first of all the first thermodynamic quantity is internal energy. Okay, आप पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही पढ़ना है. All the thermodynamic quantity we will discuss, then their formula, numerical uses, like that. Now we have to continue with our chapter. अब ऐसे अपने को ये पूरा चैप्टर पढ़ना है. Okay, so first one is the internal energy. देखो अब क्या हो गया इंटरनल एनर्जी का मतलब. द इंटरनल एनर्जी मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक एनर्जी, आंतरिक खुद की एनर्जी. A very simple definition what we can say that the internal energy is the energy of the substance. Yeah, internal energy is the energy of any system. सिस्टम के खुद की जो एनर्जी है that energy is called as the internal energy. जैसे सपोज मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि मैं आपके लिए एक सिस्टम हूं क्योंकि आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक, आपका चैट मुझे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए एक सिस्टम हो गए. ठीक, तो व्हाट वी कैन से दैट ईच एंड एवरी सिस्टम इज हैविंग इट्स ओन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द व्हिच टाइप ऑफ द एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी. माय डियर, you please remember that this internal energy can be presented by E or U. ठीक है, तो ये हमारी पहली थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हुई which can be presented by E or the U, which is called as the internal energy. ठीक, तो क्या मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी का. ठीक, इंटरनल एनर्जी मतलब आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, हाउ विल यू डिफाइन दिस टर्म इंटरनल एनर्जी. तो देखो मैं तुम्हें 2 डिफिनेशन देता हूं. पहले क्या बोल सकते हो, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. ठीक, या तो ऐसे बोल सकते हो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी. वेरी बेसिक आंसर है ना. या फिर क्या बोल सकते हो, द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड विद इन और अ सिस्टम, है ना. द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड within a system is also called as the internal energy. मैंने आपसे बोला हर एक पर्सन जिसको हम या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो सिस्टम का काम करेगा. तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है ना, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी. तो ये भी एक डेफिनेशन दे सकते हो. तो दूसरा डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो, एनर्जी दैट स्टोर्ड, हाँ, एनर्जी दैट स्टोर्ड, जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, किसमें, विद इन
within a system, या इसी को सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, हर सब्सटेंस के पास खुद की एनर्जी है, सो दैट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज द व्हिच एनर्जी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी इज देयर। ठीक है ना? तो वेरी बेसिक आंसर इज देयर कि दैट द इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम ड्यू टू इट्स ओन कंपोजिशन। आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब ड्यू टू इट्स ओन कंपोजिशन, अपने खुद के कंपोजिशन से क्या एनर्जी। आप देखो एनर्जी की बात करोगे तो कंपोजिशन में क्या, जैसा मैं अपनी बात अगर कर रहा हूं तो जब मैं यहां पर खड़े होकर ऐसे लिखने लगता हूं तो कौन सी एनर्जी मेरी बन जाती है, पोटेंशियल। जब मैं ऐसे मूव करने लगता हूं तो कौन सी एनर्जी बन जाती है, काइनेटिक। ठीक, तो सो मेनी टाइप, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टम के अंदर हर बार एक जैसी एनर्जी नहीं होती, सो मेनी एनर्जीज आर देयर, मतलब इंटरनल एनर्जी कैन बी सम ऑफ, इट कैन आल्सो बी सम ऑफ, कौन कौन सा सम, काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सो मेनी टाइप ऑफ द एनर्जीज आर देयर। भाई कोई भी सिस्टम जो जो काम करता आ जाएगा और उसमें जो जो भी एनर्जी लगेगी, the sum of all the energy will also be considered as the internal energy of the system is there। ठीक है? So is the concept is okay to everybody? Is it okay to everybody? And now तो ये तो हो गया इंटरनल एनर्जी का मतलब, अगर हम डेल्टा यू बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी चेंज। This is called as the internal energy change. Delta U is called as the internal energy change is there। ठीक? अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ा अच्छा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, एंड दिस इज द क्वेश्चन व्हिच कैन आल्सो बी अराइज इन योर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम। इंटरनल, व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज। सोचो, बहुत बढ़िया सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। किसी सिस्टम का अगर एक इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि बेसिक सा मतलब है, अगर आप डेल्टा यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, U2 माइनस U1, पहले सिस्टम की एनर्जी बाद में सिस्टम की एनर्जी, जो डिफरेंस आएगा उसी को चेंज बोलोगे। सो कैन एनीबॉडी थिंक समथिंग अबाउट दैट कि व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब बदल सकती है? सोचो क्या क्या ऐसा होगा। ओके, वेरी गुड, शाबाश शानिका, बहुत बढ़िया, very nice। So Sanika and Anam definitely they came with the very right answer कि when work is done, जब वर्क होगा तब इंटरनल एनर्जी बदल सकती है। और कोई बच्चा बता सकता है एनी अदर आंसर? सोचो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला आंसर आ चुका है कि सर व्हेन ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ओके, निधि ने लिखा ड्यूरिंग अ प्रोसेस, वेरी गुड, कोई एक प्रोसेस होगा तो भी ऐसा होगा। ओके, महक रोड बाय चेंजिंग द स्टेट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ भाई, anybody else? Anybody else? और कोई बच्चा लिख सकता है कुछ? कोई और लॉजिक लग रहा है क्या? When the internal energy of the system will be changed. No one? चलो मैं बताता हूं। तीन बातें हैं बेटा, तीन वजहों से there are the three main factors which are the very good, very good आर्या, बहुत बढ़िया, शाबाश आर्या। यू डोंट बिलीव दैट आई वाज जस्ट गोइंग टू प्रोनाउंस योर नेम, मैं तुम्हारा नाम बोल नहीं जा रहा था कि आर्या आज तो लिख दे बेटा कुछ आंसर, मैं 3 दिन से तेरा नाम बोल रहा हूं। ओके, बट यू रोट एक्सीलेंट आंसर। सो 2 आंसर बहुत अच्छे आए, 3 आंसर हमारे पास बहुत अच्छे आ गए। पहला एक आंसर आ गया, सब जब वर्क होगा तब बदल सकती है एनर्जी, हीट चेंज होगा तो एनर्जी बदल सकती है। ठीक, और तीसरा एक आंसर है कि जब कोई प्रोसेस होगा, ठीक है ना। एक्चुअली महक तुम्हारा आंसर प्रोसेस पे ही बेस्ड है, प्रोसेस अगर होगा, और अगर जिन बच्चों ने प्रोसेस लिखा है उनका भी आंसर हीट और वर्क पे ही बेस्ड हो गया। भाई प्रोसेस होगा तो वर्क डन सिस्टम से सराउंडिंग पर होगा या सराउंडिंग से सिस्टम पे होगा, है ना। प्रोसेस अगर होगा तो हीट एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो आई होप यू कैन से दैट कि द 2 मेजर थिंग इज दैट हीट एक्सचेंज, अगर हीट एक्सचेंज होगा तो हमारा ये इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक, दूसरा बात वर्क डन, वर्क डन की वजह से। अब यहां पर क्या होगा, देखो हीट एक्सचेंज अगर है तो या तो सिस्टम से सराउंडिंग पर हीट एनर्जी चेंज होगा या फिर सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट आएगी। एंड द सेम थिंग
फॉर वर्क डन ऑल्सो। इन दोनों के लिए दो बातें सेम है। या तो वर्क सिस्टम, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये एक व्हाइट बोर्ड है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो एंड इस पे मैं कुछ लिख रहा हूं, तो अगर ये, चलो एक क्वेश्चन बताओ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू आर कंसीडरिंग दिस व्हाइट बोर्ड एज अ सिस्टम, if you are considering this whiteboard as a system, so what you will say about me when I am writing on this whiteboard? Work is done by the system or on the system? बताओ, अगर इस व्हाइट बोर्ड को आप एक सिस्टम मानते हो क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो और मैं इस पे कुछ लिख रहा हूं, तो आई एम डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ओके, वेरी गुड। So Shubham, Prakhar and Vineet, Mayur, Anam, they wrote right answer. The work is done on the system. Very good. Bhushan, Shimant and Mahek, Tanvi. बहुत बढ़िया। All the students wrote the excellent answer कि work is done on the system। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, अगर ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इस व्हाइट बोर्ड को थोड़ा छोटा कर दूं या व्हाइट बोर्ड थोड़ा बड़ा ले आऊं, तो वहां पर भी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अगर व्हाइट बोर्ड छोटा है तो मुझे कम लिखना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। व्हाइट बोर्ड अगर बड़ा आ जाएगा तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब मेरी एनर्जी में चेंज आएगा, है ना। इसी बात को आप कैसे बोलोगे, मैटर, ड्यू टू द मैटर चेंज। मैटर मतलब मास, जो सब्सटेंस है। या तो मैटर सिस्टम पर ऐड करा दो या मैटर सिस्टम से क्विट करा दो। इन बोथ द केसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल आल्सो बी चेंज। तो आप तीसरे चीज को क्या लिखोगे, मैटर। अब मैटर का मतलब क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हो इंटर्स ऑन सिस्टम, या तो जोड़ दो या लीव फ्रॉम सिस्टम, है ना। इस बोर्ड को थोड़ा काट दिया, कम कर दिया, तो क्या हो गया, लीव फ्रॉम सिस्टम, मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और व्हाइट बोर्ड और बढ़ा दिया तो आपने बोला साहब और आपने ऐड कर दिया, तो वहां पर भी आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो एनर्जी ज्यादा चेंज हो जाएगी। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर by which the internal energy of the system can be changed. The very very much important part. ठीक है ना? Is it okay to everybody? Is it okay to everybody that what is the internal energy and what are the factor at which internal energy will be changed? Please text. Please text. Okay, good. I got the answer from Subham only. Okay, very good, Mahek, Mayur, very nice. चलो, अब एक क्वेश्चन बताओ। Now, a very good objective question. Internal energy is the intensive or extensive property. ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? Very good, स्नेहा. Good. Anand, Prakhar and Vineet also. So internal energy is the extensive property or the internal intensive property. Anybody can text me? Yes, very good. Sabash, Nidhi. Nidhi wrote the right answer. It is the extensive property. जो हमारी internal energy है ना, वो कैसी property है? Extensive. It is the extensive property. Very good. Good, Kalyani. Tanvi, Mayur, Vineet, Subham and Shimant, Anam. Very good. Sneha also. So that is the extensive property. Good, Bhushan. ये extensive property. Why it is the extensive property? कोई आंसर लिखेगा? Why the internal energy? Why the internal energy is the extensive property? Anybody can write the answer for that. क्यों है ये extensive property? Why the internal energy is the extensive property? No one. कल ही तो बताया है। Yes, very good, very nice. Because it depends upon the quantity. Very good. क्योंकि क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा ये। क्वांटिटी कम ज्यादा कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आपके वहां पर लिखा है, यहाँ पे पॉइंट है बेटा। वेरी गुड, शाबाश। सो निधि, तन्वी एंड कल्याणी गिव द राइट आंसर एंड विनीत आल्सो, क्योंकि यहाँ मैंने मैटर लिखा है। मैटर का मतलब क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है। और आशुतोष ने भी लिखा, वेरी गुड। इस वजह से एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो,
गुड सीमा, नाइस। नाउ नेक्स्ट वन, इसके बाद एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बताना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ ऐसा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, for isothermal process. Now my dear, damn sure I am saying that this type of the question based on IIT mains और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, then what will be delta U? कोई बता सकता है? अगर कोई एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? What you can say that? Okay, good Cesar. I think you joined late, Cesar, but no issue. इसमें मैंने क्या पूछा? Is the question clear to everybody? My question is that कि अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या नन ऑफ एवर? ये आपके चार पार्ट हैं, A, B, C, D for this question. What is your answer? This is the competition level question. Please text me. For the isothermal process, what will be delta U? Okay. Kalyani gave the answer 0. Very good. Good. Nidhi also. ये कल्याणी और निधि का भी जोड़ी बहुत बढ़िया है ना? ये भी सचिन और गांगुली की जोड़ी है। Good. शाबाश. So Bhushan wrote A. Okay. Very good. Vineet wrote 0, Shubham wrote greater than 0, Shimant wrote the 0. Okay. So first of all, my dear, Tanvi also wrote the 0. और आप समझ सकते हो जब बहुत सारे आंसर एक से ज्यादा आ गए तो the right answer, A is the right one. A is the right option. क्यों ऐसा होगा? देखो, एक्चुअली क्या है कि जब आइसोथर्मल हो गया तो आइसोथर्मल में क्या हो गया? डेल्टा टी चेंज ही नहीं होगा, है ना? जब डेल्टा टी नहीं बदलेगा तो T2 इज इक्वल टू T1 रहेगा। तो जो पहले टेम्परेचर है वही बाद में टेम्परेचर है। और अगर दोनों बार टेम्परेचर सेम हो गया तो ना तो हीट में चेंज आएगा, और अगर हीट में चेंज नहीं आएगा तो वर्क में भी चेंज नहीं आएगा। तो उस कंडीशन पे क्या होगा? डेल्टा यू जो होगा वो हमेशा 0 रहेगा, मींस U1 इज इक्वल टू U2। शुभम, इज इट ओके टू यू? शुभम यादव, because you opt the option greater than 0. So now is it clear to you, Shubham? Please text me. Okay, good, शाबाश. Now, so after that, अब ये पहला थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हो गई, which is called as the internal energy. अब आपको पता है अगर एनर्जी होगा तो वर्क भी होगा, because work is what we can say stored in a form of the energy only, then is a form of the energy only. तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आ रही है वो वर्क डन, वर्क पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी। और छोटा सा एक प्रूविंग भी, एक छोटा सा फॉर्मूला भी अपने को सीखना होगा, छोटा सा प्रूविंग है वर्क डन पर बेस्ड। देखो, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्क। सेकेंड थर्मोडायनामिक क्वांटिटी अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द वर्क। ठीक, वर्क। चलो भाई, क्या होता है? देखो, वर्क क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्क? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट? सिंपल सा साइंस का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्क? वर्क क्या होता है भाई? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म वर्क? जल्दी जल्दी बताओ भाई। ओके, एफ। ओके, शुभम समझ गया कि मैं बोलने वाला हूं, उससे पहले उसने आंसर काट दिया। गुड शुभम, इंटेलिजेंट वर्क। ओके, एनीबॉडी एल्स? एफ इनटू एस। अच्छा, डिस्टेंस मान लिया। ओके, एनीबॉडी एल्स? कोई और? In the simple way, what you can say that the work is the product of the force and the displacement, है ना? W is equal to F into D. ये बेसिक सा मतलब होता है। और वैसे क्या, वर्क इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी ओनली,
वर्क इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, वर्क एक एनर्जी का ही फॉर्म है और इसीलिए जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेनेवर द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज डिस्प्लेस्ड, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जब हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे बात करेंगे तो जब जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड द वर्क ओनली। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क का आप जो फॉर्मूला बोलते हो आप उसे बोलते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज देयर, सो W इज इक्वल टू F इनटू D, है ना। ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हो वर्क डन का, बिल्कुल सही। अब क्या पढ़ना है देखो, नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ, फॉर्मूला पढ़ने के लिए मान लो कि अब हम तो थर्मोडायनामिक में पढ़ रहे हैं, तो अभी अपन ने क्या किया कि सपोज कोई एक सिलेंडर लिया है ना, कोई यहां पर मैंने एक सिलेंडर मान लिया और इस सिलेंडर में कोई एक गैस भरी हुई है, फॉर एग्जांपल अ गैस इज फिल्ड इन दिस पर्टिकुलर सिलेंडर एंड नाउ यहां पर आपने एक पिस्टन लगाया, ये पिस्टन है, ये एक पिस्टन हो गया और इस पिस्टन से क्या होगा, आप इसमें एक प्रेशर डालोगे, ठीक। जब आप प्रेशर डालोगे उसमें तो क्या चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, देयर विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ओनली, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है, इस वर्क को हमें कैसे पढ़ना है, इस वर्क को हमको पढ़ना है एक्सपेंशन के फॉर्म में, है ना, या तो एक्सपेंशन के फॉर्म में या फिर कंप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, एक्सपेंशन और द कंप्रेशन। क्योंकि आप ये जो फॉर्मूला पढ़ते हो ये फॉर्मूला गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट माय डियर हियर वी हैव टू जस्ट डिस्कस दिस फॉर्मूला फॉर व्हिच टाइप ऑफ द वर्क, मैकेनिकल वर्क। ये तो मैकेनिकल वर्क है ना, ये मैकेनिकल वर्क हो गया जहां पे आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, ठीक। ऐसे ही मैंने आपसे बोला कि अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हो, पढ़ोगे आप धीरे धीरे फॉर्मूला, अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हो तो क्या होता है, वो होता है ईएमएफ इनटू चार्ज क्वांटिटी, ठीक। तो ऐसे हमारा कौन सा वर्क निकल जाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये कौन सा हो जाता है, मैकेनिकल वर्क। बट हर बार फॉर्मूला वही, ये भी फोर्स है, ये भी एक फोर्स है और एक डायरेक्शन में ही जाएगा, तो कॉन्सेप्ट वही है बट अलग अलग के हिसाब से फॉर्मूला बन रहा है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, अगर कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस आप कर रहे हो तो आप हीट और वर्क पर बात होगी, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आइदर द एक्सपेंशन विल बी देयर और द कंप्रेशन विल बी टेक प्लेस ओवर देयर। सो नाउ अल्टीमेटली अपने को जो वर्क पढ़ना है वो इस प्रोसेस में पढ़ना है ना, अपने को जो फॉर्मूला बनाना है वो ये बनाना है कि वर्क डन, है ना, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और द कंप्रेशन, ठीक है ना। या आप इसको और भी एक अच्छा सा बात बोल सकते हो, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये थर्मोडायनामिक के हिसाब से माना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना। थर्मोडायनामिक के हिसाब से अपन जो फॉर्मूला बना रहे हैं दैट इज द वर्क डन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम। कहीं पर या तो एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो भी प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कंप्रेशन अगर आप कर रहे हो तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इन पर चेंज होकर बात करें। Is it okay to everybody? Is the introduction part is okay to everybody? Please text me. Then I will move forward. फिर मैं आगे बढ़ता हूं। Okay, good, शाबाश। So and now one more thing here कि ये जो आप वर्क डन पढ़ रहे हो ना, इसके अंदर कोई भी एक गैस भरा हुआ है, कोई भी गैस है, and this type of the work done you will discuss for the thermodynamic process। यहां पर आप थर्मोडायनामिक प्रोसेस करोगे। अब क्या होगा कि अगर आप प्रेशर P, मैंने आपसे बोला कि सपोज आपने P प्रेशर यहां पर अप्लाई किया, है ना, मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया प्रेशर ऑन पिस्टन, आपने पिस्टन पे अगर P प्रेशर लगा दिया, है ना, अगर आपने प्रेशर पे P लगा दिया, प्रेशर ऑन द पिस्टन इज द P ओनली, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ बहुत अच्छा, अगर यहां पर P अमाउंट का प्रेशर आप अप्लाई करोगे then what will be the volume? The volume will increase or decrease? If you will apply the pressure from the piston on this cylindrical vessel, then what will happen with the volume?
वॉल्यूम पे क्या चेंज आएगा? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी? यस, वेरी गुड, इट विल डिक्रीज। बहुत बढ़िया, शाबाश। सो द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग दैट डिक्रीजेस, दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो अब तो कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, अगर यहां पर प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आपने क्या बोला? घटेगा। अगर वॉल्यूम घटेगा सो विल एनी डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर? नाउ प्लीज टेक्स्ट मी, while applying the pressure from this piston, the volume will decrease. So at that condition, will any displacement will be there? वहां पर कोई displacement होगा? Will any displacement will be there? Please text me. Yes, very good. क्योंकि क्या होगा देखो, जब आप यहाँ पे P अमाउंट का प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है ना, जब P अमाउंट का प्रेशर अप्लाई करोगे तो पहले गैस कंप्रेस होगा, फिर गैस एक्सपेंड करेगा, तो इस कंडीशन पे एक डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसको मैंने डीएल बोला, ठीक है ना। तो इस कंडीशन पे जो हमारा वर्क डन आएगा, ठीक है ना, जो हमारा वर्क डन आएगा वो क्या होगा? F इंटू डीएल। भाई अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो आप फोर्स तो देना ही पड़ेगा ना, F इंटू डीएल आ जाएगा। अब देखो फिजिक्स के हिसाब से आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा रखा है? P इज इक्वल टू F अपॉन A, पढ़ा है ना? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये पढ़ चुके हो। तो यहां से अगर फोर्स निकालोगे तो क्या आएगा? P इंटू A, ये बनेगा। ये यहां पुट कर दो, जब यहां पर भी पुट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू DL, है ना? W इज इक्वल टू P into A into DL. Now, please check that this A into DL is the, इसे क्या लिख सकते हो? चलो आप फिजिक्स बताओ भाई। A into DL can be written like, you can write over here what is A into DL, क्या लिख सकते हो वहां पर? A हमारा एरिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, सो एरिया इनटू लेंथ इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P इंटू डेल्टा V, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। वेरी गुड सीमन, यहां पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम आ गया, है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम आ गया, बिकॉज चेंज इन द वॉल्यूम विल बी देयर, है ना। ये हमारा यहां पे वॉल्यूम बन जाएगा। अगर मैंने डीएल लिखा तो मैं डीवी भी लिख सकता था, नो इशू, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझो कैसे लिखोगे। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर in which 1 mole of the gas is filled. So when a pressure will apply on the piston, then P pressure will be required, then the volume of the gas will compress, and when it will spend, so what will happen? The change in the volume delta V will come. तो आपने ऐसे पूरा एक फॉर्मूला बना दिया। So that is the work done. अच्छा एक बात बताओ, this is the work done, ये जो फॉर्मूला आया है, this is the work done on the system or by the system? Please text me. This is the work done by the system or on the system? Is a very much important question. ध्यान से बताना, work done by the system or on the system? Okay, रिया ने लिखा है on the system, शुभम ने लिखा by, मयूर on the system, सीमंत on, and भूषण wrote the by the system. Okay, ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी माय डियर। देखो मैं बताता हूं, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम माय डियर। ये बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? यस, वेरी गुड आनंद, वेरी गुड आनंद। सो द स्टूडेंट हु रोट ऑन द सिस्टम, प्लीज मेक श्योर। कैसे हुआ? क्योंकि जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो पहले कंप्रेशन हुआ, लेकिन अपन तो डीएल ले रहे हैं। ये डीएल कब आ रहा है? जब एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब जब आप क्या बोल रहे हो कि व्हेन एक्सपेंशन विल बी देयर, व्हेन एक्सपेंशन विल बी देयर, देन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा। भाई पहले कुछ और था, बाद में कुछ और आया, सो द चेंज इन द वॉल्यूम विल बी डेल्टा V। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा है ना, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उन बच्चों से जिन्होंने ऑन लिखा था,
उन बच्चों से जिन बच्चों ने ऑन लिखा है, तन्वी, देन सीमंत, मयूर, रिया, और बच्चों ने लिखा था, वो मेरा स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाता? तन्वी, कैन यू टेक्स्ट मी, एंड रिया, सीमंत, मयूर, अगर सपोज आई एम कैलकुलेटिंग हियर work is done on the system, then what the change will come on the formula? Anybody can text? अगर work is done on the system लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या बदल जाता है? बस इतना बताओ। Anybody can text? Yes, very good, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया कि वर्क इज डन बाय द गैस इज द P इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी एक चीज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि अभी बहुत नेक्स्ट 2-3 मिनट्स यू विल फेस अ ह्यूज कंफ्यूजन, है ना। अगले से 2 से 3 मिनट तक आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक। इसलिए बहुत मतलब कंट्रोल करना और ध्यान से पढ़ना, बहुत बारीक बारीक चीज आने वाली है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन आएगा अभी, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आई एम हियर, है ना, मैं हूं यहाँ पे। डोंट, क्या बोलते हैं ना कि डोंट बी फियर, आई एम हियर, है ना, डरो मत, मैं बताऊंगा। बट फिर भी तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो क्या होगा, अभी आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, कोई ऑन बाय सब भूल जाओ। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा। मैं अभी आपको थोड़ी देर ऑन बाय ये सब छोड़ दे रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्मूला लेके आता हूं, ठीक। अगर मैंने पहले फॉर्मूला क्या लिखा था, W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू DL, मैंने इसको लिख दिया P इंटू DV, कैलकुलस के हिसाब से इसको मैंने DV लिख दिया, ठीक। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, W इज P इंटू DV। इसका इंटीग्रेशन किया V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम की तरफ। ये कैलकुलस का पार्ट है, घबराओ मत, ठीक है ना। जब ये छोटा सा पार्ट था तो उसको एक्सपेंड किया, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 ले लिया, ठीक। तो जब मैंने ये फॉर्मूला बनाया तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू V2 माइनस V1। इसको जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। वही लिखा है जो मैंने यहां लिखा, बट मैंने आपको बताया है कि V1 V2 कैसे आया, डेल्टा V कैसे आया, ठीक। घबराओ मत एकदम, थोड़ा बहुत कैलकुलस फिजिक्स में जरूरी होता है, तो बायो वाले बच्चों को फिजिक्स में जरूरी है और मैथ्स वाले तो पढ़ते ही है। याद रखो कि अगर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx होता है, और अगर dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x होता है। सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, समझ रहे हो आप। तो जब dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v आएगा, तो एक बार v2 होगा, एक बार v1 होगा, माइनस कर दोगे तो डेल्टा हो जाएगा। इज दिस ओके टू एवरीबॉडी? ये पार्ट सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताओ, इज इट ओके टू एवरीबॉडी? प्लीज टेक्स्ट मी। ओके गुड, शाबाश, ठीक। तो अभी क्या हो गया, देखो अभी जो हमारा ये डेल्टा v आया है, दैट इज द v2 माइनस v1। तो ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम है ऑफ गैस, है ना, ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस है। अब ध्यान से पढ़ना कि कब कॉन्ट्रैक्शन, कब बाई और आई, मतलब उसका ऑन का और बाई का क्या मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो पूरा जो ऑफ द गैस है, यहाँ पे गैस किसका काम करेगा, सिस्टम का। यहाँ जो गैस काम करेगा वो तो सिस्टम का करेगा, क्योंकि आप उसे ऑब्जर्व करोगे कि वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, जब वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम होगा, बहुत बहुत ध्यान देना, दो कॉन्सेप्ट है बेटा। एक बार या तो वर्क सिस्टम से सराउंडिंग पर होगा, या फिर एक बार वर्क डन सराउंडिंग से सिस्टम पर होगा, ठीक। सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज द वर्क इज डन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो ये क्या हो गया, बाय द सिस्टम, ये बाय द सिस्टम हो गया। और वर्क इज डन सराउंडिंग टू सिस्टम, तो ये कौन सा वर्क हो गया, ऑन द सिस्टम।
ये ऑल द सिस्टम हो गया, ठीक। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? The two type of the work is possible over there, either from system to surrounding or from surrounding to system is there. And then I discussed कि the system to surrounding, तो system ने work किया by the system, और अगर surrounding से system पर आया तो work is done और the system is there, ठीक। ये मतलब हुआ ना। तो अभी देखो क्या होगा। Anybody can text me out of these two cases, out of these two cases, in which case compression will be there and in which case expansion will be there. बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से बताना। Out of these two cases, in which case gas will contract and in which case gas will expand? जल्दी बताओ, किस पर गैस एक्सपेंड करेगी और किस पे गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी? Anybody can text me? ओके, सीमन ने लिखा सराउंडिंग टू सिस्टम पे गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके ओके, सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। आशुतोष ने लिखा फर्स्ट कंप्रेशन देन द सेकंड वन इज द एक्सपेंशन। Anam wrote first expansion, second is the contraction. Okay, what about other student? I want the answer from all, please. Anybody can text me. ओके, कल्याणी, मयूर, तन्वी, भूषण, सानिका, सभी का आंसर आ रहा है। नितिन लिखा पहले में एक्सपेंशन होगा, दूसरे में कंप्रेशन होगा। ओके, वेरी गुड, शाबाश। सो द फर्स्ट वन, ये जो होगा ना, जहां पे ऑन द सिस्टम है, यहां पे गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंप्रेशन होगा। पहले वाले केस में कंप्रेशन होगा, दूसरे वाले केस में एक्सपेंशन होगा। बिल्कुल सही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव रोट द राइट आंसर कि जो पहला वाला केस है उस पे एक्सपेंशन होगा, क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा। तो जब सिस्टम से सराउंडिंग पर जाएगा तो क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। और यहां पर सराउंडिंग टू सिस्टम बाहर से आ रहा है, और अगर बाहर से आएगा तो क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो यहां पर याद रखो कि W will be the positive and W will be the negative। कब W कब पॉजिटिव होगा और W कब नेगेटिव होगा? तो वर्क इज डन पॉजिटिव if work is done on the system। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, work is done on the system, that will be the positive, and the second one is work is done by the system, the work will be the negative। ठीक है ना? ओके सेजल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये याद रखो, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, फॉर्मूला बहुत आसान था। नीचे देखो, दो तरीके हैं, या तो सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम। देखो, मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बना, फिर से एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे बोला कि आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया है P। अब अगर आपने प्रेशर लगा दिया P, तो इस कंडीशन पे क्या होगा? इस कंडीशन पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये वर्क इज डन, इसलिए तुमको मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने बताया था क्या सही है क्या गलत है। वहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं बताऊंगा जिन बच्चों ने ऑन द सिस्टम लिखा था उनका आंसर सही था पहले वाले केस में। देखो, ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है क्योंकि बाहर सराउंडिंग से, ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है। तो सराउंडिंग से सिस्टम पे जा रहे हो, सराउंडिंग से सिस्टम पे जाओगे तो मतलब ऑन द सिस्टम होगा, और जब ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब दूसरी बात, आपने प्रेशर एक बार लगा दिया, आपने एक बार प्रेशर लगा दिया, सेकंड केस क्या बना वो देखो। अब सेकंड केस क्या बना? ये फर्स्ट केस है, दिस इज द फर्स्ट केस, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या हुआ कि सपोज आपने प्रेशर तो अप्लाई कर दिया, ठीक, आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा? इसके बाद वापस भी तो आएगा ये, इसके बाद ये वापस भी तो आएगा। जब वापस आएगा तो अब कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। अब सिस्टम फेंक रहा है बाहर अपने आप, मतलब सराउंडिंग पे ला रहा है। तो दिस इज द सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब ये हो गया। जब सिस्टम टू सराउंडिंग होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा? बाय द सिस्टम होगा और वर्क नेगेटिव होगा। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, V2 - V1 लिखते हो, ठीक। तो अगर V2 ग्रेटर देन V1 है
अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो W हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो उस कंडीशन पे W क्या होगा, माइनस P इंटू डेल्टा V आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि V2 माइनस V1 आप करते हो, तो अगर V1 बड़ा है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, माइनस आएगा। और अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो फाइनल, समझ लो ना बात को, कब होगा। सो दैट इज द V2 माइनस V1 ओनली। सो दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कब गैस एक्सपेंड करेगी। दो टाइप के हमारे वर्क हो गए, एक सिस्टम टू सराउंडिंग हो गया, एक सराउंडिंग टू सिस्टम हो गया। जब सिस्टम टू सराउंडिंग होगा तो बाय द सिस्टम वर्क होगा, मतलब इस कंडीशन पे वर्क डन निगेटिव होगा, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम हो गया, ठीक है ना। और जब सराउंडिंग टू सिस्टम वर्क होगा तो ये ऑन द सिस्टम होगा, और उस कंडीशन पे हमारा ये वैल्यू जमा हो जाएगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? Because time is not allowing to me to be continue. Is it okay to everybody? Okay, when the work done will be the positive and when the work is done will be the negative. Okay, good. Sabash. Okay. Okay, thank you so much. So that's all for today, my dear. Tomorrow again I will interact with you with some more new interesting concept. कल बहुत मजेदार लेक्चर होगा, कल अपने को बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन पढ़ना है, दैट इज द एंथैल्पी एंड द एंथैल्पी चेंज। तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको और उतना ज्यादा मजा आता जाएगा, ठीक है। So that's all for today, my dear. Thank you. Tomorrow again we will meet. Goodbye. Take care.